Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. Today we are going to start a new chapter of your course reader book, that is the chapter number 8. So open it at your book at the page number 61. The Champa flower. Have you heard some flower names? Yes, I know. You know very many types of flowers name. In your junior classes you learnt about the flowers name. The champa is also a flower. Besides champa, you know about the rose, the lotus, the dahlia and lily. Yes, so there are so many type of flowers. Marigold, sunflower. So champa is also a short flower, it is very short in the size, but its fragrance is amazing. So the champa flower. This poem is written by Mr. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, before starting this poem, you should know about the poet. The poet Rabindranath Tagore is one of the famous poets. He wrote many poems, short stories, plays, novels and songs. He also composed music for his songs. Okay, and Rabindranath Tagore has written our national anthem also. So he is also received the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems called Gitanjali. Yes, he had written a book Gitanjali, which is a collection of different poems. So the champa flower is also a poem which is written by Mr. Rabindranath Tagore. Okay. So before starting this poem, what is the theme of this poem? So first I want to ask you, have you play some games with your mother? A mother and child has a very strong bonding, है ना. माँ और जो बेटे का जो रिलेशन होता है, जो उनकी बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग. बहुत ही क्या होती है, अमेजिंग होती है. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अक्सर माँ के साथ क्या करते रहते हैं, चोर हाइड एंड सीक के गेम खेलते रहते हैं, है ना. सो दैट मम्मा ट्राई टू फाइंड आउट. जो भगवान कृष्णा थे वो भी इसी तरीके से करते थे. आपने कृष्णा जो सीरियल आता है या जो कृष्ण की कहानियाँ सुनी हैं, बाल कृष्ण जो देखा है, उसमें भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैनी टाइम कृष्णा जस्ट प्ले हाइड एंड सीक विथ अ मदर. सो in this poem the poet is here is a young child here want to play hide and seek with his mother, and he imagined doing it as a champa flower growing in the yard of his house. मतलब जो इस पोयम में एक जो बच्चा है वो अपने आप को एज अ चंपा फ्लावर मानता है, और चंपा फ्लावर बन के वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, मदर को साथ हाइड एंड सीक खेलूँगा और मदर तो मुझे खोजती रहेगी और मैं तो फूलों के अंदर कहीं छिप जाऊँगा एक फूल बन के, और वो मुझे खोज नहीं पाएंगी और ऐसे में मुझे बड़ा मज़ा आएगा. सो द चाइल्ड इज़ थिंकिंग टू हैव फन. ओके, that is the theme of this poem. This poem is on the basis of imagination. Here a child imagine himself as a champa flower. So let's start what
he is thinking. Supposing I became a champa flower just for fun and grew on a branch high up that tree and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves. Okay, would you know me, mother? Again repeat with me. Supposing I became a champa flower just for fun. मतलब मान लो कि मैं एक चंपा फ्लावर बन जाता हूँ just for fun, यानी खाली ऐसे मजाक और मस्ती के लिए. And grew on a branch high up that tree. और मैं क्या हूँगा, अगर फ्लावर हूँगा तो मैं किसी पेड़ की जो शाखा है, ब्रांच है, उस पर मैं कहीं ऊंचा यानी हाई, ऊंचा ऊंचा क्या हो जाऊँगा, उगूँगा, ग्रो होऊंगा, बढ़ूंगा. एंड शुक इन द विंड, और मैं शुक में होता है हिलना, और मैं हवा जब चलेगी तब मैं हिलूंगा. विथ लाफ्टर एंड डांस अपॉन द न्यूली बडेड लीव्स, और क्या करूंगा मैं, न्यूली बडेड जो लीव्स है उन पे डांस भी करूंगा, है ना. हवा के साथ जब मैं हंसूंगा ना, हवा जब चलेगी तब मैं हंसूंगा. और क्या होगा कि न्यूली बडेड जो लीव्स हैं, नई नई पत्तियां हैं, चूँकि मैं एक छोटा सा फ्लावर हूँ, तो मैं उन पे डांस करूँगा. वुड यू नो मी मदर? अब मदर को पूछता है, तो मदर आप क्या मुझे पहचान पाओगी क्या? ओके, देन यू वुड कॉल, बेबी वेयर आर यू, एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ एंड कीप क्वाइट. ओके, तो I should slyly open my petals and watch you at your work. अब you would call, अब जब तुम मुझे नहीं देखोगी, मैं तुम्हें कहीं भी नज़र नहीं आऊँगा, तो तुम क्या बुलाओगी? बेबी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे. एंड आई शुड लाफ टू माई सेल्फ, और मैं तो मन ही मन अब चुपचाप क्या करूँगा, एंड कीप क्वाइट, चुपचाप क्या करूँगा, हंसता रहूँगा. होता है ना एक से हाइड एंड सीक में, जब कोई पूछता है वेयर आर यू, देन वी यूज टू कीप क्वाइट, हम चुपचाप रहते हैं. एंड आई शुड स्लाइली ओपन माई पेटल्स, और मैं चुपचाप अपनी पेटल्स जो हैं यानी पत्तियाँ हैं वो खोलूँगा. एंड वॉच यू एट योर वर्क, और मैं तो तुम्हें देख सकूँगा, तुम मुझे नहीं देख सकोगी, पर मैं तुम्हें तुम्हारे काम पे नोटिस कर लूँगा. When after your bath with wet hair spread on your shoulders, you walk through the shadow of the champa tree. अब क्या होगा कि जब तुम नहा के आओगी, after your bath with wet hair spread on your shoulders, जब गीले बाल तुम्हारे shoulders यानी कंधों पर रहेंगे, you walk through the shadow of the champa tree. तब तुम क्या करोगी, पेड़ की चंपा ट्री की जो छाया है, शेडो से जब पास से निकलोगी, टू द लिटिल कोर्ट वेयर यू से योर प्रेयर्स. और लिटिल कोर्ट, हियर द कोर्ट मीनिंग कोर्टयार्ड, यानी जो घर का आंगन तक तुम जब जाओगी, तो वेयर यू सी योर से योर प्रेयर्स, जहाँ जाके तुम अपने प्रेयर करती हो. यू वुड नोटिस द सेंट ऑफ द फ्लावर, तुम जब फ्लावर से निकलोगी ना मेरे, तो मेरी जो खुशबू है, सेंट है, उसको तो तुम क्या करोगी, फील कर लोगी, नोटिस कर लोगी. बट यू नॉट नो वॉट दैट इट केम फ्रॉम मी, पर ये तुम नहीं जान पाओगी कि वो खुशबू मेरे में से ही आ रही है ना. अब बच्चे में से खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि he is imagine himself as a चंपा फ्लावर. तो वो बता रहा है अपनी मदर को कि तुम मेरी फ्रेगरेंस को नोटिस तो कर लोगी, बट ये नहीं जान पाओगी कि वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आ रही है, यानी ये मेरे में से ही आ रही है. सो यू हैव टू फर्स्ट रीड इट 2 or 3 times in the rhythm, then try to understand the meaning of the theme of this poem. Okay, when after come to the next page, the page number 62, see at the top, when after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow onto the page of your book just where you were reading. Up now here
द चाइल्ड इज सेइंग कि व्हेन आफ्टर द मिड डे मील, और जब मिड डे मील हो जाएगा यानी जब दोपहर का लंच हो जाएगा, यू सेट एट द विंडो, तुम विंडो पे आके बैठ जाओगी, रीडिंग रामायण पढ़ोगी, एंड द ट्री शेडो फेल ओवर योर हेयर एंड योर लैप, और जो पेड़ की जो छाया है वो तुम्हारे बालों और लैप मीन्स गोद, तुम्हारी गोद तक भर जाएगी। आई शुड फ्लिंग माई वी, अब मैं क्या करूँगा, आई शुड फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स टू थ्रो एंड वी मीन्स स्मॉल और टाइनी, तो जो मैं भी क्या करूँगा, मेरी छोटी सी, मैं फूल हूँ तो मेरी शेडो तो छोटी सी होगी ना, तो उसको भी मैं तुम्हें थ्रो करूँगा ऑन टू द पेज ऑफ योर बुक जस्ट वेयर यू वर रीडिंग, जहाँ तुम पढ़ रही हो मैं तो क्या करूँगा, उस वहीं पे क्या करूँगा, अपनी शेडो थ्रो करूँगा। बट वुड यू गैस दैट इट वॉज द टाइनी शेडो ऑफ योर लिटिल चाइल्ड, पर क्या तुम ये जान पाओगी कि वो लिटिल शेडो तुम्हारे ही बेटे की है, वो छोटी लिटिल शेडो किसकी है, तुम्हारे ही बेटे की है। When in the evening you went to the cowshed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop onto the earth again and be your own baby once more and beg you to tell me a story. When in the evening, अब इवनिंग में क्या होगा, you went to the cowshed, जब तुम काउशेड में जाओगी विथ द लाइटेड लैम्प, हाथ में एक जलता हुआ लैम्प लेके, आई शुड सडनली ड्रॉप ऑन टू द अर्थ अगेन, तब तो मैं तो वापस से अर्थ पे वापस आ जाऊँगा, एंड बी योर ओन बेबी वंस मोर, अब रात हो गई, अब इतना बहुत है और मैं तुम्हारा बेबी वापस से बन जाऊँगा, एंड बैक यू टू टेल मी अ स्टोरी, और तुमसे एक स्टोरी सुनाने को कहूँगा। वेयर हैव यू बीन यू नॉटी चाइल्ड, तुम कहाँ थे मेरे नॉटी चाइल्ड, आई वॉन्ट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा मदर, दैट्स वॉट यू एंड आई वुड से देन, तब क्या तो मैं कहूँगा और क्या आप कहोगी। सो आई वॉन्ट टेल यू, यानी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा मदर, दैट्स वॉट यू, कि वो तुम हो, एंड आई वुड से देन, और तब मैं तुम्हें बताऊँगा। ओके।